Good morning to all. Today we will discuss economics of power generation. The subject is power 1. This is chapter number 2. So what is economics of power generation? It is an art by which we can find out the cost of production of electrical energy per unit. So the art of determining the cost of production of electrical energy per unit is called economics of power generation. Then is load curve. The curve which shows the variation of load on the power station with respect to time is known as load curve. मीन्स जो लोड है वो पूरे दिन में अगर हम 24 आवर्स की बात करते हैं तो वो लोड कांस्टेंट नहीं रहेगा. लेट अस से कि वो 5 मेगावाट है. 5 मेगावाट लोड हम पावर स्टेशन से ले रहे हैं पहले 1 घंटे में 9 से 10 के बीच. उसके बाद अगले 3-4 घंटे में वो ज़रूरी नहीं है कि वो उतने मेगावाट ही रहे. तो थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट 24 आवर्स, it will vary. So the curve which shows this variation of load with respect to time is known as load curve. So load varies from, here you can see on y-axis it is load in megawatt. Here it is 2, 4, 6, 8 and 10 megawatt, and on x-axis there is time. So from midnight 12, then 2, 4, 6, 8 a.m., 10 a.m., 12 noon, 2 p.m., 4 p.m., 6 p.m., 8, so on. So this is for 24 hours. The time is mentioned on x-axis, and on y-axis it is load. So the load varies throughout the day from time to time. This is the load curve. We can draw this load curve for a day also, like 24 hours it is shown here. So this is the day curve, and we can also draw it on monthly basis. So it will be the monthly load curve. We can also draw it for yearly basis. So it will be the yearly load curve. So this is the picture which is shown here. It is for daily load curve. So the curves which are drawn for full day are known as daily load curves, as we have seen, and for yearly they are, and for the curves which are drawn for year, are called yearly load curves. Why they are important? Why we draw these load curves? First of all, it will show the variation of load from time to time at what particular time the load was the maximum, and at what time the load was minimum throughout the day. Secondly, the area which is under this curve. The area which is under this curve represents the total energy generated by the power station. So the area under this curve represents the total energy generated by the power station. So now we will discuss some terminology related to economics of power generation. First is fixed cost. What is fixed cost? Fixed cost is the cost which includes the cost of the land. जिस जगह में वो पावर स्टेशन बना हुआ है उस लैंड का कॉस्ट क्या है, जो सैलरी वहाँ पे स्टाफ को देते हैं, और जो इंटरेस्ट है कैपिटल कॉस्ट ऑफ द लैंड पे, वो सारा इसमें इंक्लूडेड है फिक्स्ड कॉस्ट में. सो इसका KWH मीन्स जो हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं किलोवाट आवर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट कॉस्ट. कितना एनर्जी वहां जनरेट हो रहा है वो फिक्स्ड कॉस्ट उसमें इंक्लूड नहीं है. फिक्स्ड कॉस्ट में वो चीज इंक्लूड नहीं है. सो द कॉस्ट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिमांड एंड द KWH जनरेटेड इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट. सो इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ लैंड, सैलरी ऑफ स्टाफ एक्सेट्रा. देयर इज अ रनिंग कॉस्ट. ये डिपेंड करती है कितने हम वहाँ पे यूनिट्स क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं उस पावर स्टेशन में, वो सारा रनिंग कॉस्ट आ जाएगा. बिकॉज कितने यूनिट्स जनरेट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है हमारा, वो किसको इफेक्ट करेगा वो चीज, कि कितना फ्यूल यूज हुआ है, कितना प्लांट को मेंटेनेंस चाहिए. सो इसीलिए वो सब आ जाएगा रनिंग कॉस्ट में. So this is the cost which is entirely based on the units generated. So it will include cost of fuel, cost of maintenance, etc. So this is about fixed cost and the running cost of the power station. Then is load estimation. Basically it is the load requirement of the station. कितना load वो station it will carry.
So the categories of consumers such as railways, street lights, etc. जितने भी types of consumers हैं उनका जो load है उसको add on करके जो load आएगा वो total load होगा. So the future extension of demands of the load is also considered. हम उसमें कुछ add करेंगे ताकि अगर future extension भी करना हो कोई load का so that could easily be done. Then is connected load. The sum of the ratings of all electrical equipments connected to the supply system is known as connected load. So for example, घर पे दो फैन हैं उनका जो रेटिंग है that is 60 watt, तो ये हो गया 120 watt and two 3-pin plugs हैं, let us say उन पे हम लोड लगा सकते हैं 500 watt, तो इन दोनों का हो गया 1000 watt. So 1000 plus 120 is 1120. So connected load of that particular installation is 1120 watt. So this is the connected load. So sum of the ratings of all the electrical equipments connected to the supply system is known as connected load. Then is the maximum demand. So it is the greatest demand or load on the power station during a given period. फॉर एग्जाम्पल हाँ, अगर हम 24 घंटों की बात करें, अगर हम एक दिन की बात करें तो उसका मैक्सिमम डिमांड कभी भी आ सकता है. लाइक वो एट 5 o'clock है जो उसका 5 PM पे वो मैक्सिमम डिमांड आई, मीन्स उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो हमने चलाए हैं तो उस टाइम मैक्सिमम डिमांड आ जाएगी. तो जो मैक्सिमम डिमांड है वो हमेशा कनेक्टेड लोड से कम होगी, मीन्स कुछ ना कुछ इक्विपमेंट ऐसा है जो कि अभी पावर नहीं ले रहा, तो मैक्सिमम डिमांड हमेशा कनेक्टेड लोड से कम होगा. There is a demand factor. So the ratio of maximum demand to the connected load is the demand factor. It is always less than 1 because connected load is always greater than the maximum demand. So it is the important factor. Demand factor is very important to determine the capacity and cost of the power plant. Then next is load factor. So the ratio of average load to the maximum demand is the load factor. Average load क्या होगा, जितने यूनिट्स जनरेट हुए हैं, जनरेटेड यूनिट्स मीन्स किलोवाट आवर kWh. अगर हम एवरेज लोड ऑफ द डे भी हो सकता है, एवरेज लोड ऑफ द ईयर भी हो सकता है, पूरे साल का भी एवरेज लोड कैलकुलेट कर सकते हैं और डे का भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एक दिन का कर रहे हैं डेली एवरेज लोड, so the number of units generated in a day divided by 24 hours. अगर हम पूरे साल का करना चाहते हैं तो ऊपर आ जाएगा number of units generated in a year then divided by जितने पूरे साल में घंटे हैं that is 8760 hours. ठीक है, तो इसको हमने 365 को into 24 करके ये 8760 वाला फिगर आया है. सो अगर हम पूरे ईयर का एवरेज लोड कैलकुलेट करना चाहते हैं सो नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन अ ईयर डिवाइडेड बाय 8760 आवर्स. लोड फैक्टर हमेशा 1 से कम होगा, इट इज ऑलवेज लेस देन 1 बिकॉज मैक्सिमम डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एवरेज लोड. Then the load factor plays very important role in determining the cost of generation per unit. Higher the load factor, lesser will be the cost of generation per unit. Higher means जितना वो हाई जाता जाएगा, मीन्स हाई मीन्स जो मैक्सिमम डिमांड के जो एवरेज लोड है वो बराबर होता जाएगा, मीन्स जो एवरेज लोड है वो मैच कर रहा है आपकी मैक्सिमम डिमांड से, तो उतना हमारा जो जनरेशन कॉस्ट है वो कम होगा. क्यों? क्योंकि जो हम प्लांट का डिजाइन करेंगे वो हम मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से करेंगे. लेट अस से कि मैक्सिमम डिमांड, जस्ट एक एग्जांपल है कि मैक्सिमम डिमांड है उसकी 10 मेगावाट. ठीक है, मैक्सिमम डिमांड को भी समझो वो मैक्सिमम डिमांड सिर्फ फॉर ए मिनट के लिए आ रही है, वो 1 मिनट के लिए आ रही है मैक्सिमम डिमांड 10 मेगावाट, बट जो उसका एवरेज लोड है वो उसका रहता है 4 to 5 मेगावाट. तो इसमें कितना डिफरेंस आ गया. जो हम प्लांट का डिजाइन करेंगे वो हम मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से करेंगे 10 मेगावाट के हिसाब से, बट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो लोड रहता है वो एवरेज लोड है. तो जितना ही लोड फैक्टर हाई होगा, मीन जितना एवरेज लोड मैक्सिमम डिमांड के पास जाता जाएगा उतना जो हमारा प्लांट का कॉस्ट है, जो जनरेशन पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम होता जाएगा. मीन्स जो एवरेज लोड है वो मैक्सिमम डिमांड के
नियर होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए उनमें, क्योंकि जो प्लांट का डिज़ाइन करेंगे वो हम मैक्सिमम डिमांड को कंसिडर करके करेंगे। Then is the diversity factor. So it is the ratio of sum of individual maximum demands. Like 10 घर हैं, एक का मैक्सिमम डिमांड है 2 मेगावाट, दूसरे का 1 मेगावाट एंड सो ऑन। लाइक हम तीन तीन घर लेते हैं जिनका मैक्सिमम डिमांड है 2 मेगावाट, तो ये टोटल कितना हो गया, 2 + 2 is equal to 6 megawatt. So the sum of individual maximum demands divided by maximum demand on the power station. अब जरूरी नहीं है कि जब पहले घर का मैक्सिमम डिमांड है उसी टाइम पे दूसरे घर का मैक्सिमम डिमांड है, उसी टाइम पे तीसरे का है, तो ये जरूरी नहीं है। ओके, सो ये है जो सम है वो हमेशा ज्यादा होगा मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन पे। अगर एक घर का उस टाइम मैक्सिमम डिमांड है तो वो दूसरे घर का एक अलग टाइम पे होगा मैक्सिमम डिमांड। तो द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन। Then is the plant capacity factor. It is a ratio of actual energy produced divided by maximum possible energy that could be produced. तो कितना हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं डिवाइडेड बाय कितनी उससे और जनरेट कर सकते हैं, मींस टोटल और कितनी उसमें एडिशनल कैपेसिटी है, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी कितनी वो क्रिएट कर सकता है। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है वो हमेशा ज़्यादा होगी एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड से। तो इट इज प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है वो हमेशा ज़्यादा होगी एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट। देन इज अ डाइवर्सिटी फैक्टर, maximum demand on the power station divided by rated capacity of the power station. उस पे कितनी मैक्सिमम डिमांड आती है एंड डिवाइडेड बाय उसकी कितनी रेटिंग कैपेसिटी है। तो इसमें क्या है, इट इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि जो रेटिंग कैपेसिटी है वो हमेशा हमेशा ज़्यादा होगी मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन पे। लाइक मैक्सिमम डिमांड आती है उस पर 9 मेगावाट, तो ये नहीं है कि हम 9 मेगावाट का ही प्लांट बनाया हुआ है, उसकी जो रेटेड कैपेसिटी होगी वो उससे ज़्यादा होगी। तो जो डाइवर्सिटी फैक्टर है इट इज ऑलवेज लेस देन 1। नेक्स्ट इज पावर फैक्टर। द डायग्राम विच इज गिवन, दिस इज द पावर ट्रायंगल। इसके जो बेस पे है दैट इज द ट्रू पावर, दिस इज बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड, और जो इसका परपेंडिकुलर है दैट इज द रिएक्टिव पावर ड्यू टू द कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस ऑफ द लोड। तो ये जो रिएक्टिव पावर है इसकी वजह से ये एंगल बना है जो थीटा आप देख रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिएक्टिव पावर। अगर ये रिएक्टिव पावर ना हो तो ये थीटा क्या होगा, 0। तो cos 0 इज 1, तो उस केस में पावर फैक्टर 1 होगा। बट ऐसा कभी होता नहीं, रेजिस्टिव लोड प्योरली रेजिस्टिव लोड नहीं होगा, उसमें कुछ इंडक्टिव या कैपेसिटिव इफेक्ट होगा, तो थीटा का कुछ वैल्यू होगा। जितना कम से कम वैल्यू होगा थीटा का, मीन जितना थीटा छोटा होता जाएगा उतना जो पावर फैक्टर है वो 1 के पास जाता जाएगा। तो पावर फैक्टर जहाँ तो 1 होगा, जहाँ 1 से कम होगा। 1 तभी होगा जब ये थीटा 0 होगा, जो टोटली प्योरली रेजिस्टिव लोड के केस में होगा। तो द रेशियो ऑफ द ट्रू पावर, जो कि हम बेस पे देख रहे हैं किलोवाट, दिस इज द ट्रू पावर टू द एपरेंट पावर, जो कि केवीए है, जो कि हाइपोटेन्यूज पे है इसके। तो जो एपरेंट पावर है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ रिएक्टिव पावर एंड द ट्रू पावर, जो कि हाइपोटेन्यूज पे हम देख रहे हैं। तो द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द एपरेंट पावर केवीए इज नोन एज द पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर हमेशा 1 से कम होगा या 1 के इक्वल होगा। 1 के इक्वल होगा रेजिस्टिव लोड के केस में, बाकी हर केस में it will be less than 1. So higher the power factor, the lesser will be the cost of generation per unit. So जो desirable power factor है वो 0.8, 0.9 मीन्स ये 1 के क्लोज होना चाहिए, तभी जो हमारा कॉस्ट ऑफ जनरेशन होगा वो कम होगा। Then what is the base load? The load which does not change for whole day, जो कि बिल्कुल कांस्टेंट रहता है पूरे दिन। लाइक 2 मेगावाट है, वो पूरा दिन 2 मेगावाट ने तो रहना ही रहना है उस पावर स्टेशन पे, मीन्स 2 मेगावाट से कम नहीं होगा, उसको हम बेस लोड कहते हैं। पीक लोड थोड़ा वेरिएबल होता है, ठीक है। इसकी पीक सुबह 9 बजे आ सकती है, क्योंकि सभी जैसे उस टाइम के लिए मतलब ऑफिस के लिए जा रहे हैं, तो 8 से 9 वो पीक लोड आ सकता है। ऐसे ही 5 to 6 आ सकता है शाम को। तो ये वेरिएबल जो लोड है दैट इज द पीक लोड, और जो
कांस्टेंट लोड है, दैट इज द बेस लोड। सो बेस लोड स्टेशंस क्या है? द पावर स्टेशंस विच टेक अप द इनवेरिएबल लोड, जो कि चेंज नहीं हो रहा लोड, जो स्टेशंस उस लोड को कैरी करते हैं और जो पूरे दिन के लिए काम करते हैं, वो बेस लोड स्टेशंस है। फॉर एग्जांपल हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये बेस लोड स्टेशंस हैं हमारे। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए बेस लोड की? दे शुड हैव लो रनिंग कॉस्ट, बिकॉज इसको थ्रू आउट द डे काम करना है, इनवेरिएबली काम करना है इनको, और इट शुड बी कैपेबल ऑफ working for long periods. Repair and maintenance costs should be less because they are working throughout the day. पीक लोड स्टेशंस क्या हैं? जो कि वेरिएबल लोड लेते हैं सिस्टम का, आर कॉल्ड पीक लोड स्टेशंस। फॉर एग्जांपल डीजल प्लांट, गैस पावर प्लांट्स, इनको हम सिर्फ जब पीक लोड आता है देन दे कम टू द पिक्चर फॉर कैरिंग दोज peak load variations. Then what are the properties of peak load stations? They should be capable of quick start. अब जैसे थर्मल पावर प्लांट की बात करें, उसको हम पीक लोड स्टेशन के लिए नहीं यूज कर सकते। दे आर सुटेबल फॉर बेस लोड ओनली, बिकॉज उसको स्टार्ट करने में ही वी नीड 6 to 8 hours। तो अगर पीक लोड तो कुछ टाइम के लिए आया है, पूरे दिन में सारा दिन नहीं रहता, तो हम ये ऐसे पावर प्लांट होने चाहिए जिनको हम क्विकली स्टार्ट कर सकें। तो दे शुड बी कैपेबल ऑफ क्विक स्टार्ट, लाइक डीजल है, गैस पावर प्लांट्स हैं, इनको हम क्विकली स्टार्ट कर सकते हैं। सो दे आर सुटेबल फॉर पीक लोड स्टेशंस। They should quickly respond to the load variations. So this is the curve. Here on the y-axis you can see power production, means in megawatt it is showing on y-axis, and on x-axis it's the time. So you can see the base load, it will be the constant for throughout the day. Then are the intermediate loads जो कि maximum duration के लिए रहते हैं। उसके बाद peak loads हैं जो कि just for small durations किसी किसी टाइम पे आए हुए हैं पूरे दिन में। सो दोज आर द पीक लोड्स। देन व्हाट इज द इंटरकनेक्शंस ऑफ पावर स्टेशन? इसमें क्या है, नंबर ऑफ जनरेटिंग स्टेशंस को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं एंड वो जो सिस्टम बनता है वो इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम होता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इससे ऑफ कोर्स द रिलायबिलिटी बढ़ेगी सिस्टम की, और इकोनॉमिक ऑपरेशन होगा, एंड द एक्सचेंज ऑफ पीक लोड्स, पीक लोड भी एक्सचेंज हो सकता है। अगर एक प्लांट पीक लोड नहीं कैरी कर रहा, वो जो पैरेलल में दूसरा कनेक्टेड है, इट कैन कैरी दैट पीक लोड कंडीशंस। देन लास्ट वन इज द इंक्रीज्ड कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। थैंक यू।